Description and utilizations of verbial phrases in Indian English grammar. The verbial phrase becomes a new verb with a meaning different from that of the simple verb. Such phrases are called phrasal verbs. Let us learn them in this chapter. Note, some phrasal verbs have also been covered in World of Words and explanation of fill of the blanks. Examples: breakdown. Example करके उसका तीन चार जो प्रयोग है, लेकिन डिस्क्रिप्शन एंड यूटिलाइजेशन जैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब माने वर्णन करना और उसका डिस्क्रिप्शन हुआ, और फिर उसका यूटिलाइजेशन का हो, नॉट ओनली डिस्क्रिप्शन, अब उसका यूटिलाइजेशन कहीं 3 में, कहीं 4 में, कहीं 2 में होता है। इसका प्रयोग सीखना है। पहले से थोड़ा ही भिन्न इसको बनाया गया, जैसे ब्रेकडाउन। दिस फ्रेज हैज से ब्रेकडाउन का अनेक मीनिंग है, बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। The machine breaks down, it stops working because it is damaged. A system, दूसरा है system, plan or discussion breaks down. It fails because of a problem or disagreement. But an idea or a statement is broken down. It is separated into its parts, which makes it easier to understand or deal with. Here, breakdown means 3 stages में 3 माने, इस पर हम विचार करेंगे। फिर 4 है, a substance breaks down. It changes into a different form because of a chemical or historical process. ये breakdown का हो गया। 4 बैकअप करना। This phrase has several meanings. First, if you back up a claim or a story, you supply evidence to prove it is true. Second, if you back somebody up, you give him help and support when he is in a difficult situation. Sometimes you back your friend up even when you know he is lying. Third, in the language of computers, if you back up a file or program, you make a copy of it, you are then on the safe side in case the original is lost or damaged. Tisra phrase है call up. This phrase has several meanings. If you call up someone, you make a telephone call to him. If something say X calls up something else, say Y. X brings back Y to your mind. In other words, X makes you recall Y. A meeting with my classmate called up memories of our school days. Third, if you call up something, you are something that is spread or kept available. He called up his spiritual powers to rise to the occasion. Fourth, if you call up someone, you summon him for military service, you draft him into the armed forces. Catch up. It has several meanings. You catch up with someone who is in front of you, that is, you reach him by walking faster than he. You catch up with someone at a higher level, that is, you reach the same standard or level as he is at. It is very difficult to villagers to catch up with urban people. To catch up
on with something. This is you spend time or effort making up for lost time, lost night. I have guessed. I have catching up on a sleep in a day, in a time. You are caught up in something that is, you are involved in it, actually, unwillingly, exam at hand, but he is caught up in social obligations. Cut up, cut up. If you cut somebody up, you destroy him completely. Foreign inventors time and again cut up the Indian forces. Do up. It has several meanings. If you do something up, you fascinate kids often have problem in doing their shoelaces up. If a woman does her hair up, she arranges it so that it is tied or fastened to close to her head. It does not hang loosely. If a woman does her hair up, यदि कोई महिला अपने केस को संवारना चाहती है, she arranges it so that उसकी व्यवस्था करती है, arrange करती है, it is tied or fastened to close to her head, जो उसके हेड को वो टाइट कर दे, बांध दे या फैशनेबल बना दे. It does not hang loosely. उसका जो केस है वह हैंग नहीं कर सकता, लूज नहीं हो सकता. यहाँ प्रयोग हुआ है वुमेन डज हर हेयर. If you do up an old building, you decorate and repair it. This makes its conditions better. It looks more modern. Cinema halls are often done up to attract audience from the higher classes. इसका मतलब होगा कि जो पुराने बिल्डिंग है, if you do up an old, पुराने बिल्डिंग को क्या करते हो? Do up, you decorate and repair it. उसको सजाते हो और रिपेयर करते हो. जहां जहां गड़बड़ी रहती है उसको रिपेयर करते हो. It looks more modern. और रिपेयरिंग करने से और डेकोरेशन करने से, घर को डेकोरेट करते हो ना, सजाते हो, तो वह मोर मॉडर्न हो जाता है, आधुनिक हो जाता है. सिनेमा हॉल्स को उसको डन अप किया जाता है, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है ऑडियंस के लिए. ये डू अप. If so meeting is done up, it is covered in material or paper like a parcel. The gift was cheap, but it was done up in costly paper. इसका मतलब हुआ, if something is done up, it covered in material or paper like a parcel. जो तुम करते हो, कोई तुम्हारा थिंग है, कोई सामान है, पेपर से है, उसको तुम ऊपर से बनिया पेपर से कवर करते हो. चाहे गिफ्ट किसी को देते हो, द गिफ्ट वाज चीप. तुम्हारा गिफ्ट बहुत सस्ता रहता है. क्या किसी को देते हो तो गिफ्ट तुम्हारा सस्ता होगा. राजीव. यस सर. हेलो. यस सर. गिफ्ट किसी को गिफ्ट देते हो तो चीप रहता है जी, सस्ता रहता है. बट इट वाज डन अप, लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है? इन कॉस्टली पेपर. कॉस्टली पेपर से खूब रंगीन से सजा दिया जाता है, कवरिंग कर दिया जाता है जी. नहीं, यही डन अप हुआ. अलग अलग प्रयोग है. fall on upon, it has several meanings. fall on का भी, fall upon का. If something unpleasant falls on someday, it happens to him. Misfortune fell upon the king and he lost his kingdom. If something unpleasant falls on someone, it happens to him. किसी व्यक्ति के लिए कभी कभी अनप्लीजेंट आ जाता है, दुखदाई का समय आ जाता है. It happens to him.
मिसफॉर्चून फेल अपॉन द किंग, मिसफॉर्चून बुरा दिन गिरता है इस राजा पर, एंड ही लॉस्ट हिज किंगडम, वो अपने राज्य को गंवा लेता। मिसफॉर्चून, if something unpleasant falls on somebody, if something unpleasant falls on somebody, कुछ लोगों पर unpleasant falls on, unpleasant falls on का क्या मतलब हुआ? प्लीजेंट में लग गया है प्रीफिक्स अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब नाखुशी का, आनंद के विपरीत आता है। कुछ लोगों पर अनप्लीजेंट फॉल्स हो जाता है। इट हैपेंस टू हिम, ए अनप्लीजेंट फॉल्स ऑन somebody, it happens to him. Misfortune fell upon the king, राजा पर वो misfortune आया, and he lost his kingdom, उसका राज चला जाता है। If something falls on you, it becomes your responsibility or duty. If something falls on you, तुम पर कुछ something आया, falls on हो गया, it becomes responsibility or duty. आज मान लिया तुम यहाँ क्लास में आए हो, क्लास की मीटिंग चल रही है और कुछ मिसफॉर्चून आ गया, नहीं, समथिंग फॉल्स ऑन यू, तुम पर आ गया अचानक, घर पर बाढ़ आ गया, इसका इंफॉर्मेशन है, फ्लड का, बाढ़ का इंफॉर्मेशन आया, फ्लड का, और इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, और तुम्हारी ड्यूटी थी सर का यहाँ रिकॉर्डिंग करना था, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटी थी, लेकिन तुम नहीं कर सके। क्यों? इफ समथिंग फॉल्स, वो फ्लड की जो सूचना आ गई तुम पर, इसलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम मेंटेन नहीं कर सका, अपने ड्यूटी को नहीं कर सका। ट्रेडिशनली व्हेन द फादर डाइज, ट्रेडिशनली परिवार में जो ट्रेडिशन आता है, व्हेन द पिता मर जाते हैं, इट फॉल्स अपॉन द एल्डेस्ट सन टू रन द फैमिली। किसी भी परिवार में ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ किसी के पिता मर जाते हैं, इट फॉल्स अपॉन, ये ड्यूटी हो जाता है द एल्डेस्ट सन, बड़े पुत्र पर, टू रन द फैमिली, परिवार चला। If somebody falls on you, he attacks you suddenly and violently. In Ajodhya, it was reported a monkey man created menace when he fell on innocent people. अयोध्या में जाओगे कभी तो वहाँ वो जो बंदर है वह मीनेस पैदा करता है। क्या करता है? लोग जा रहा है, हाथ में लड्डू रखे हुए हनुमानगढ़ी से उसको छीन लेता। इन अयोध्या इट वाज रिपोर्टेड ए मंकी मैन क्रिएटेड, वो मंकी मैन जो है वो क्रिएट मीनिंग्स करता है व्हेन ही फॉल ऑन इनोसेंट पीपल, जो अच्छे लोग हैं हनुमानगढ़ी से वो लड्डू चढ़ा के जा रहे हैं, उन पर अटैक बोलता है, उनके हाथ में से छीन लेता। मेरे साथ भी एक बार घटना घटी। इन अयोध्या इट वाज रिपोर्टेड ए मंकी मैन क्रिएटेड मीनेस करता है, वो जो जाने वाला है ना इनोसेंट पीपुल, वो लड्डू लिए हुए है, उस पर अटैक बोलता है, छीन लेता। इसलिए कभी अयोध्या जाना तो हनुमानगढ़ी में ध्यान रखना, नहीं तो वो हनुमान जी का भक्त सब जो है चढ़ाई कर दे। मेरा भी लड्डू छीन लिया, लेकिन वो तो हमारे साथे थे, तुरंत हमको लाकर और 2-4 किलो दिए, समझे। If your eyes fall on something, you see or notice it. People's eyes fell on a bomb-like object, and an alarm was raised. It has several meanings. Fix up, fix करना है। जो टाइम तुम लोग फिक्स करते हो, हम लोग फिक्स किए हैं ना, at 10 AM से हम लोग फिक्स किया कि इंग्लिश क्लास चलेगा। फिक्स अप, अब देखो इसका भी सेवरल मीनिंग्स है, नॉट वन है, इट हैज सेवरल मीनिंग। इफ यू फिक्स समथिंग अप, इफ यू फिक्स अप समथिंग,
you repair, decorate or adapt it. You do work that is necessary in order to make it more suitable or attractive. The landlord is fixing up the flat so that he can get more rent. मकान मालिक जो है वो अपने मकान का क्या करता है? रेंट फिक्स करता है. The landlord is fixing up the flat so that he can get more rent. कितना रेंट लेना चाहिए वो उसका फिक्स अप होता है. Second, if you fix something up, fix up है, fix up adverbial phrase है. If you fix up something, you build it very quickly or roughly, probably because you need it at once or because you need it for only a short time. The fruit seller tried to fix up a shelter from the sun, but in the wind blew it away. जैसे हमारे बच्चे जो अभी क्लास ले रहे हैं, कर रहे हैं, उनका टाइम फिक्स था नहीं कि हम जाएंगे सर का क्लास करेंगे. क्विकली और रफली आए, बेचैन रहे होंगे कैसे कपड़ा ठीक किया, कैसे बाबड़ी सूटा, और प्रोबली बिकॉज उनको जरूरत रहती है इसलिए, बिकॉज यू नीड इट एट वंस भी फ्रेज है जल्दी, और बिकॉज यू नीड इट फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार हो जाए. पहले 5 मिनट पहले स्टार्ट करना चाहिए प्रेजेंटेशन में, हम लोग बैठ जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में तुम लोग ठीक 10 बजे यहाँ आती करते हो, इसलिए पहले से सुधार करो. 5 मिनट पहले लाइन में रहो. राजीव, सब बच्चे सुन रहे हैं ना? हेलो. यस सर, सुन रहे हैं. इसलिए इनका फिक्सेशन पहले से होना चाहिए. यस सर. वो ठीक 10 बजे, 10 तो 10 में आते हैं. पहले आ जाए, 5 मिनट पहले आ जाए, क्या दिक्कत है? और हेस्टिंग में आते हैं एट वंस नहीं आइए. ये सब फ्रेज है. फ्रेज का जाल बना लीजिए, आपको वो ब्यूटीफुल बनाएगा. फ्रेज मेक्स ब्यूटीफुल द सेंटेंस को ज्यादा वो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाता है. यदि 500 का कलेक्शन तुमको हो जाए तो तुम सेंटेंस बोलोगे केवल फ्रेज में और तुरंत उससे पकड़ा जाएगा. ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. फ्रेज हेल्प्स यू मेकिंग अ सेंटेंस ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. So it is essential to know the utilization of phrase. इसीलिए इसका नाम हमने दिया है, क्या दिया है? बोलो, नाम क्या दिया है इसका? Description and utilization of verbial phrases in Indian English grammar. चाहे डिस्क्रिप्शन, हम पहले उसका वर्णन करते हैं और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं. नहीं, यूटिलाइजेशन हम कैसे करें? If you fix someone up, you make the arrangements that they need. You travel agent fix you up with tickets for your vacation. यदि कोई टूर में तुम जाते हो तो टूर का जो इंचार्ज है वहां तुम क्या करते हो? फिक्सअप वो करता है. फिक्सअप किया तुम्हारे ट्रेवलिंग का, यात्रा का, और यू ट्रेवल एजेंट फिक्सेस यू अप विद टिकट्स भी देता है और सारा अरेंजमेंट वो करता है, फिक्स करता है. गेट थरो, इट हैज सेवरल मीनिंग्स. इफ यू गेट थरो ए टास्क, यू कंप्लीट इट, especially when it requires a lot of effort. Get thorough. अब get thorough का मीनिंग देखो. If you get thorough a task, यदि तुमको कुछ टास्क मिलता है, सबक मिलता है, you complete it, especially when it requires a lot of effort. तब तुम especially इसको क्या करते हो? जो तुम्हारे जरूरत का चीज है, ये lot of effort करके, काफी प्रयास करके तुम इसको तैयार करते, जो तुम्हारे जरूरत का चीज है. A lot of effort is the way. A lot of effort का क्या मतलब हुआ? A lot of effort का क्या मतलब हुआ?
प्रयास करके तैयार करना है। हाँ, ये लॉट नहीं, ये लॉट ऑफ, अनेकों बार एफोर्ट करते, यस सर, अनेकों बार। एफर्ट ये करते हैं। लॉट ऑफ एफोर्ट का मतलब हुआ अनेकों बार, अनेकों बार एफोर्ट करते, लॉट ऑफ एफोर्ट करते। और दूसरे शब्दों में लॉट्स ऑफ एफोर्ट भी कर सकते हो। दो आया अंग्रेजी का शब्द, ये लॉट ऑफ एफोर्ट, और दूसरा लॉट्स ऑफ करेंगे। पीडीएफ भेज देंगे, तुम लोग पढ़ के आना। इफ यू गेट थ्रू एन अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, यू मैनेज टू लिव थ्रू इट। इफ यू गेट थ्रू एन अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, मान लिया तुम्हारे किसी दिन तुम्हारा अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम आ गया, तुम गेट थ्रू आ गया, तुम्हारे सामने आ गया अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए सवेरे तैयार हो रहे हैं, सर का क्लास करना है, और अनप्लीजेंट पीरियड आ गया 1 घंटा के 6 to 7, दैट वाज योर अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ 6 to 7, 6 AM to 7 AM। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया 6 AM, 6 AM since 2 जनवरी 2020। सिंस ऑफ टाइम, सिंस लग गया, पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है। समझ गया? पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या अंतर होगा राजी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम? एक अंतराल, यस सर, एक अंतराल का बात है। हाँ, जैसे 10 to 11, it is अंतराल, it is interval, this is called period of time, this is called period of time। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ 10 बजे, at 10 AM। मतलब इसमें फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम में समय फिक्स है। at 10 AM today on 9 अगस्त 2020। समझिए इसको, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 10 AM to 11 AM, this is called period of time। 9 AM to 10 AM, period of time, this is called period of time। Point of time at 10 AM today on 9 August 2020। रिंकू, हेलो, यस सर। है कि नहीं? बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम? नहीं समझे तो फिर समझाएंगे। यस सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है इंटरवल। जैसे आपका क्लास 10 से 11 बजे होता है, क्या? फ्रॉम 10 to 11 AM, this is called period of time। At 10 AM today on 9 August 2020 is a point of time। 10 बजे से, समझ गए? 10 बजे से ए पॉइंट ऑफ टाइम, और वो पीरियड बतलाता है। बोलिए, अब समझे कि नहीं? यस सर, समझ गए। बोलिए, समझाइए हमको दूसरा उदाहरण से, दूसरे उदाहरण से। इंग्लिश क्लास टुडे 10 PM, टुमारो मतलब 9। जो बुझाता है बोलो। ठीक है। टुमारो का मतलब हुआ जो पीरियड जो बतलाता हो, अवधि जो बतलाता हो, वो पीरियड ऑफ टाइम हुआ। 5 to 6, 6 to 7, 8 to 9,
AM, this tells us period of time. Point of time means 10 AM, 1 PM, since February 2 February 2020. This is called point of time. 10 AM today on. If you get through an unpleasant period of time, राजीव के लिए अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम क्या था? राजीव आज बोलो, कोई बोल दो 1 घंटा का है सर। कोई अनप्लीजेंट टाइम बोल दो 1 घंटा का। 1 घंटा का अनप्लीजेंट टाइम बोलो। सर 11 अरे बोलो ना 6 हो गया, जो बीत गया है उसको वही हुआ। और बच्चे बोले पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है? बोलिए। और नहीं कोई बोल सकता पॉइंट ऑफ टाइम? अंजलि गुप्ता बोलो। अंजलि सर पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि 10 से 11। हाँ ठीक है। और 10 से 11 नहीं, at 10 AM। at 10 AM to 11। 2 नहीं, नॉट 2 तो पीरियड हो गया। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता एक है ना? निश्चित समय। बोलो राजीव, बोलो। सर आई बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 2001। ठीक कहता है बॉर्न। I was born। सबको बोलना है इस बार। I was born on सुमन बोलो। आयशा सुमन। I was born on 2 October 2001। जन्मदिन मनाते हो, बर्थडे मनाते हो, आप बोल नहीं सकते हो। शिवानी बोलो था। What is your birthday? I was born in 27 March 2001। फिर से बोलो। I was born in 27 March 2001। 2001। हाँ, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम है क्या? रिंकू बोल दिया। तरुणम खानम। हाँ, तरुणम खानम बोलिए। हाँ बोलिए। I was born in 12 April 2000। ठीक है, ये आप लोग बनाते हैं जन्मदिन, तो जानना चाहिए ना कब और हुआ। सो पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है। और स्पष्ट हो गया पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू गेट थ्रू ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, you completely use it up. If you get through a large amount of something, you completely use it up. If you get through to somebody, you succeed in making him understand something that you are trying to tell him. If you get through to somebody, you succeed in contracting him on the telephone. If you get through an examination, you pass it. If a law or proposal gets through, it is officially approved by, say, a committee or parliament. Keep up. If you keep up, you continue to maintain a high level. You do not lag behind. Look at its various uses. इसका various uses देखिए आप। किसका? keep up का। keep up. If you keep up, you move at the same speed as some else. If he increases his speed, who also do so. My friend drives very fast. It is difficult to keep with him. कोई कसकर ड्राइव कर रहा है, उनके साथ रहना मुश्किल है। If you keep up, you move at the same time. Speed as someone else. इस पर बहुत बढ़िया उदाहरण दिया हूं मैं तुम्हारे कॉलेज के एक छात्रा का। शिल्पी ड्राइव्स योर स्कूटी वेरी फास्ट। यस सर। शिल्पी ड्राइव्स योर स्कूटी वेरी फास्ट। आज गायब है, ये कहाँ चली गई? मर नहीं तो गई? नहीं है।
इसका टेलीफोन खराब है। तो कीप अप का मतलब हुआ स्लीपी ड्राइव्स स्कूटी वेरी फास्ट, इट इज डिफिकल्ट टू कीप विथ हर। क्या रे राजीव, इज इट डिफिकल्ट टू कीप विथ हर और नॉट? सर उसके साथ नहीं रहना चाहिए, नॉट हर। Selfie drives a scooty very fast. यस सर। In 80 speed. It is difficult to keep with her. क्या डिफिकल्ट है कि नहीं उसके साथ रहना? बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल है, रहे। बहुत डिफिकल्ट है। More मोर difficult. यस सर। हाँ, एग्जाम्पल्स है ना, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है ना सुटेबल सर लोगों के लिए। बिल्कुल सटीक उसके पे बैठता है सर। हाँ, लेकिन वो है ही नहीं, गायब है। तो वीडियो देख If लेगी, you keep up, if you क्या? वीडियो देख लेगी वीडियो। हाँ, बहुत चालू। Learn all the recent facts. If you keep up, you learn all the recent facts about something. You deal successfully in a situation where things are rapidly changing. अब देखो, अभी के समय में रैपिडली चेंजेज हो रहा है सब कुछ में, सिचुएशंस में रैपिडली तेजी से सिचुएशंस हो रहा, चेंजेज हो रहा है। यू डील सक्सेसफुली इन सिचुएशन, और तुमको उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से तुमको क्या करना है? सक्सेसफुल होना है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा तुमको? Where things are rapidly changing, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, रैपिडली चेंजेज हो रहा है। इसमें मैं एक व्यक्ति का नाम दिया हूं जो भी अनुपस्थित है आज। ए सिचुएशन वेयर थिंग्स आर रैपिडली चेंजिंग, श्वेता कीप्स अप विद द लेटेस्ट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। श्वेता कीप्स, ये जो बदलते हुए समय में वो अपना लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका ध्यान रखती है। कीप्स अप करती, श्वेता कीप्स अप विद द लेटेस्ट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। इसलिए ए टॉप रैंकर्स रिपोर्ट कार्ड ऑलवेज रीड्स वेल डन, कीप इट अप। इफ यू कीप इट अप, you continue working as hard as you have been in the past. ये बहुत टॉप रैंक का जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है उसमें लिखा रहता है वेल डन। सर कीप अप का ये एडजस्टमेंट से होगा। हाँ, हाँ, रखना, ख्याल रखना, जानकारी बात है। The phrase has two meanings. If you live with someone, you live in the same house as she, you have a sexual relationship with her but are not married to her. The phrase live together can also be misused in this sense. Such a relationship is known as live-in relationship. अभी चला हुआ है, मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ रहते हैं। Such a relationship is known as live-in relationship. लेकिन वो मैरिड नहीं होते हैं, रहते हैं। दूसरे देश में तो बहुत है, अपने यहाँ थोड़ा कम है। लिव इन रिलेशनशिप बहुत कम है यहाँ, वो विदेशों का कल्चर है, हमारे यहाँ नहीं है। वेस्टर्न कल्चर, हम आफ्टर मैरिज रहते हैं एक दूसरे के साथ नहीं। लेकिन इसको जानना जरूरी है, व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप। राजीव बोलो, व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप? सर ये एक फ्रेंड रहना, एज ए फ्रेंड रहना, एक साथ शादी से पहले एक साथ रहना, लिव इन रिलेशनशिप। जैसे एक उदाहरण दो, अभी वर्तमान में एक बिहार के जैसे सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती। इतना टैलेंट आदमी को फंसा के मार दिया। बिहार का नाम करता, परिवार का नाम करता है। और हम लोगों पर जो कमेंट होता है, क्षत्रिय समाज पर जो फिल्म वाला करता है,
उसको जाके रोकता है वो फिल्म गलत सलत बना देता है। आज वो आ रहता था, प्रतिरोध होता है उसका, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में अपना जान गंवा लेता है। मेरे समझ से इट इज वेरी बैड। लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट सुटेबल फॉर आवर कल्चर। हमारे संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। इसका अंजाम देख लो, सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ। नहीं, उसके माता पिता कितना बढ़िया से पढ़ाई लिखा है, सब अरमान ढा गया। लिव इन रिलेशनशिप के कारण पूरे अपने मेरिट को खत्म कर दिया। और उसका ही मेरिट क्या, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है फिल्मी दुनिया में। नहीं, हॉलीवुड क्या कहते हैं, बॉलीवुड में बहुत बड़ी बात होती और बिहार की बड़ी भूमिका होती। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट गुड। ये मेरा सजेशन है, नहीं रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था किया है, लिव इन रिलेशनशिप, आप लव आफ्टर मैरिज, या बिफोर मैरिज लव करते हो तो उससे तुम मैरिज कर लो। नहीं, ये लिव इन रिलेशनशिप विदेशों का कल्चर है, हमारा वो कल्चर नहीं। वेस्टर्न कल्चर।